Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Let us continue with the topic destructions caused by the cyclones. Now, in previous class, we have learnt about how the cyclones are formed, right? Now, destructions जो नुकसानी होती है हमको साइक्लोन्स की वजह से, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. Cyclones can be very destructive. Strong winds push the water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. These are the first indications of an approaching cyclone. The water waves produced by the winds are so powerful that a person cannot overcome them. The low pressure in the eye lifts the water surface in the center, and the rising water may be as high as 3 to 12 meters. 12 meters means 36. 12 into 3 अगर करें तो 36 feet high. इतनी ऊंची लहरें उठने लगती हैं. It appears like a water wall moving towards the shore. जब समुद्र के बीचों बीच जब ये प्रेशर क्रिएट होता है तो तेज़ हवा बहने लगती है और पानी जो किनारों का पानी होता है ना, वो किनारा छोड़ के आगे ज़मीन की तरफ बढ़ने लगता है. और कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके घर या झोपड़ी या जो भी वो सब बहने लगने शुरू हो जाते हैं. राइट. अभी चेतावनी आई थी कि समुद्र में तूफ़ान आने वाला है तो अलर्ट कर दिया जाता है, कोस्टल एरियाज़ को खाली कर दिया जाता है. फिर जब वो स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो वापस लोग अपनी जगह पर आ जाते हैं अगर तूफ़ान नहीं आया किनारे तक. तो इट अपीयर्स लाइक ए वाटर वॉल. ऐसे लगता है कि किसी ने पानी की दीवार खड़ी कर दी हो. एज ए रिज़ल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज़, जो नीचाण वाले होते हैं ना विस्तार, causing severe loss of life and property. और जो समुद्र किनारे लोग रहते हैं उनके ज़्यादातर लोग भी मर सकते हैं, जानवर भी मर सकते हैं, प्रॉपर्टी की भी नुकसानी होती है. It also reduces the fertility of the soil. क्योंकि ज़मीन जो होती है वहाँ पर नमक वाला खारा पानी आ जाएगा तो वो ज़मीन को भी ख़राब कर देता है. Continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation. Continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation. तो ऊपर से तेज़ पानी आएगा तो बाढ़ भी आएगी बारिश के पानी की वजह से. High speed winds accompanying a cyclone can damage the house, telephones and other communication systems, trees etc., causing tremendous loss of life and property. तो जहाँ पर भी तूफ़ान आता है वहाँ पर बहुत नुकसानी होती है. A cyclone is known by the different names in different parts of the world. It is called a hurricane in the American continent. In Philippines and Japan it is called the typhoon. अलग अलग कंट्रीज़ में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. राइट. ये होता है डायग्राम में आपको दिखाया गया है वर्ल्ड मैप के ऊपर के. हरिकेन जो है यहाँ पर टाइफून बोला गया है. देखो, हियर इट इज़ नोन एज टाइफून एंड हियर इट इज़ नोन एज हरिकेन. राइट. तो जब आता है तब हमें करना क्या चाहिए. द डायमीटर ऑफ ए टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज ए किलोमीटर. तो ये जो गोल चक्रावात बनता है पानी का, उसका मिनिमम डायमीटर अगर देखने जाओ तो 1 मीटर यानी कि 3 फीट से लेके 1 किलोमीटर लंबा तक का भी हो सकता है. The funnel of a tornado sucks the dust, debris and everything near it at the base due to low pressure and throws them out near the top. Here are a few accounts of the survivors of tornadoes from Discovery Channel's Young Discovery series में. I saw the cloud coming and tried to take the shelter inside, but as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky. I was not hurt at all.
After the storm, we had to clean the debris from the wheat fields. We picked up splintered boards and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off, and rabbits looked like they had been skinned. A tornado shelter is a room situated deep inside or underground, having no windows, or otherwise it is better to shut the windows and take shelter under a table, wrench, where debris cannot reach. One has to bow down on knees, protecting head and neck using the arms. तो जब भी हमें किसी तूफ़ान में फंस जाते हैं तो इसकी तरह हमें छुप के बैठना पड़ेगा, सर को और गर्दन को बचा के, राइट, नहीं तो नुकसान हो सकती है हमारी बहुत बड़ी। यहाँ पर एक यंग डिस्कवरीज चैनल की थोड़ी सी दिखाई गई है कि कैसे एक लड़का जो था वो अपने घर की तरफ भाग रहा था जब वो टॉर्नेडो आ रहा था, लेकिन जब वो डोर का नॉब खोले उससे पहले ही उसके पूरे घर को उठा लिया था तूफ़ान ने, राइट। तूफ़ान में क्या होता है कि एक गोल फनेल जैसा होने लगता है, राइट। नीचे से चीज़ें लो प्रेशर की वजह से हम लोग कैसे किसी चीज़ को सक करते हैं, वैसे वो सारी चीज़ों को सक करता है। और टॉर्नेडो जो गोल 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 ऊपर की साइड में होता है ना, वो सारी चीज़ों को ऊपर से फिर फेंकने लगता है नीचे, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वाज डन। Tornadoes in our countries, they are not very frequent. A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground. Most of the tornadoes are weak. A violent tornado can travel at a speed of about 300 kilometers per hour. एक घंटे में 300 किलोमीटर पार कर सके इतनी फास्ट स्पीड से हवा चलती है। Tornadoes may form within the cyclones. The whole coastline of India is vulnerable to the cyclones, particularly the east coast. The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storms, both in the terms of intensity and frequency of the cyclones. तो ईस्ट में ज़्यादा खतरा रहता है कंपेयर टू द वेस्ट। वेस्ट में इतना साइक्लोन्स आने की संभावना नहीं होती है जितनी ईस्ट में होती है। इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, हमें मेजर्स बचाव के क्या करने चाहिए। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, पहले से चेतावनी दी जाती है लोगों को, राइट। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द government agencies, the ports, fishermen, ships and to the general public। तो जो भी पोर्ट के ऊपर काम करते हैं, राइट, समुंदर के ऊपर, राइट, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, पोर्ट्स होते हैं, फिशरमैन जो मच्छी मारी का काम करते हैं, शिप का जो सामान ले जाने का काम करते हैं, राइट, और जनरल पब्लिक जो वहाँ पर रहती है पोर्ट के आजू बाजू, उन सबको चेतावनी दी जाती है कि भाई अपना अपना कीमती सामान ले लो और किसी सेफ जगह पर चले जाओ, वरना तूफ़ान आएगा तो नुकसानी हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू द सेफर प्लेस। साइक्लोन शेल्टर्स बनाया जाता है, अंडरग्राउंड होता है, राइट, और लोगों को वहाँ पर भेजा जाता है कि भाई जल्दी जल्दी जितनी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पर पहुँचो। फिर एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इश्यूड बाय द मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। कभी कभी क्या होता है कि चेतावनी आती है, 2-3 बार चेतावनी आती है और कुछ इतना ख़ास नुकसान होता नहीं है। कभी टॉर्नेडो जो होता है, तूफ़ान जो होता है, वो समुद्र किनारे पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है या तो डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो कभी हमको ऐसा लगता है बस ये तो वार्निंग ही है, लेकिन आता नहीं है। तो कभी भी उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ऑलवेज़ टेक इट एज ए सीरियस नोट। जब भी टीवी में, न्यूज़पेपर में या स्पीकर्स पे, मूविंग स्पीकर्स पे निकलते हैं वार्निंग्स देने, तो उसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि टॉर्नेडो की ताकत इतनी होती है कि जिसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते, फिर अपने आप को बचा नहीं सकते। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एट्सेट्रा टू द सेफर प्लेस।
एक ऐसी जगह पर आसानी से हम अपना सारा कीमती सामान ले जा सकें, राइट। तो ऐसी अरेंजमेंट भी करनी चाहिए हमें। अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पर पानी भरा हो उस रोड के ऊपर से जाना नहीं चाहिए, एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स। तूफ़ानों ने फ्लड ने क्या रोड को डैमेज कर दिया होगा, पानी भरा होगा, हमें पता नहीं होगा कहाँ खड्डा है कहाँ खाई है, राइट। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। तो ये सारे इम्पोर्टेंट नंबर्स को भी हमें मौजूद रखना चाहिए अपने पास, फास्ट अवेलेबिलिटी के। Some other precautions if you are staying in a cyclone hit area. Do not drink water that could be contaminated. Always store ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। तो वहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए कहीं का भी, क्योंकि कंटामिनेटेड, ख़राब हो चुका होता है वो पानी, समुंदर का पानी मिल चुका होता है उसमें, राइट। डो नॉट टच द वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक का वायर दिख रहा है या स्विच को टच नहीं करना चाहिए। डो नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। ऐसा नहीं कि चलो चक्कर मार के आए, देख के आए क्या क्या टूटा, किसका टूटा, कभी नहीं निकलना चाहिए। ज़रूरत ना हो तो मत निकलो। अभी कैसे है वो रोज़ मोबाइल में हमको मिलता है मैसेज, किसी को भी फ़ोन करो कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलो, वरना कोरोना बाहर बाज़ार में फैला पड़ा है। तो अपने आप को बचाओ घर में रह के। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। जो हमारी मदद के लिए आए होते हैं रेस्क्यू करने, बचाने के लिए, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। चलो ये भी निकलवाओ, हमारी मदद करो, ये करवाओ, वो करवाओ। नहीं, पहले अपनी जान बचाओ, फिर थोड़ा बहुत कीमती सामान बचाओ, राइट। फिर कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। आजू बाजू में रहने वालों को भी कोऑपरेट करो और फ्रेंड्सों को भी मदद करो। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड दिस डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. थोड़ा समय पहले क्या था कि इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट। तो हमें मुश्किल से एक आध दिन मिलता था अरेंजमेंट करने का कि भाई साइक्लोन आ रहा है, चलो भागो अभी सामान लेके। एक दिन जितना भी टाइम नहीं मिलता था। सोचो अचानक से तुम्हें कोई बोले कि अपनी सारी कीमती चीज़ें लेके घर से निकलो बंद करके, तो कितना अनड्यू हो जाएगा तुम्हारे साथ में। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम कम से कम 2 या 3 दिन पहले हम बता सकते हैं कि भाई देखो समुंदर में साइक्लोन वहाँ पर है, हमारे पास आ सकता है, तो 2 या 3 दिन लगेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, क्या क्या चीज़ ले जानी है उसको तैयार रखो, या खुद पहले से ही चले जाओ। वाई टू वेट कि जब आएगा तब भागेंगे। The world today is very different thanks to the satellites and radars. A cyclone alert or a cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm, and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. अभी तो 24-48 घंटे पहले हमको बता दिया जाता है कि भाई साइक्लोन जैसा कुछ प्रेशर बन रहा है, हो सकता है साइक्लोन आएगा, तो हिट हो उससे पहले आप अपनी तैयारियां कर लो। द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी हाफ एन आवर व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियरर द कोस्ट। हर आधे घंटे में हमको चेतावनी दी जाती है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर। तो सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल के हेल्पिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो भी मदद के लिए तैयार रहते हैं कि भाई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या लोगों को दूसरी तरफ ले जाने में भी, ट्रांसपोर्टेशन करने में भी मदद करे। इस तरह से फास्ट पीपल को मूव किया जाए, वैसे ही सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए तैयारियां की जाती है, राइट। सो इस चैप्टर में हमने देखा एनीमोमीटर, साइक्लोन, हरिकेन, लाइटनिंग क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, मॉनसून विंड्स क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, टॉर्नेडो क्या बोलते हैं, टाइफून किसको बोलते हैं, एंड विंड फ्लो पैटर्न क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। ये उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है पेपर पूरे इसका।
इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज चुका हूँ, जिसको नहीं मिले तो आज फिर भेज दूँगा. राइट डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक and do prepare well for your examinations, right? Till then, have a nice day.